Hello children, hello friends, how are you? I hope you are fine there. आज आपके सामने ले आया हूँ next chapter, that is you may say that the second chapter of the book Flamingo. The name of this chapter is Lost Spring. Lost Spring story is written by Anis Jung. Anis Jung, okay, writer Anis Jung. She is a journalist as well as a writer. हाँ, तो in this story में theme क्या है? What is the theme of this? Theme in the sense main idea. Theme of this story क्या है? Theme of this story is the exploitations of childhood opportunity. Childhood opportunity. TUNITY. ओके, यहाँ पे IES कर दीजिए, चाइल्डहुड अपॉर्चुनिटीज. बट इस स्टोरी का टाइटल क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग. और यहाँ पे थीम क्या है? द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्डहुड अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे स्प्रिंग वर्ड क्यों यूज किया है? राइटर अनिस जंग हैज यूज दिस वर्ड स्प्रिंग एज ए मेटाफोरिकल मीनिंग हियर. स्प्रिंग सीजन रिफर्स टू हियर मेटाफोरिकली इट रिफर्स टू और कंपेयर्ड विथ चाइल्डहुड. यानी कि इस पोएम का इस स्टोरी का और एक टाइटल हो सकता है दैट इज कॉल्ड लॉस्ट चाइल्डहुड. लॉस्ट चाइल्डहुड अगर कहेंगे आप तो ठीक है. अब चाइल्डहुड कैसे लॉस्ट हो सकता है? दैट मींस अपॉर्चुनिटीज और द फैसिलिटीज और द जॉय ऑफ चाइल्डहुड आर लॉस्ट. जॉयज, इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, ड्रीम, गोइंग टू स्कूल, प्लेइंग, ऑल दीज थिंग्स आर लॉस्ट इन दिस स्टोरी. ठीक है. वंस मोर, ही लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट मीन्स that means something is not available. Okay, spring, the word spring is compared, or you can say that metaphorically this refer to the childhood. So in this story writer is telling that the opportunities, chances of childhood, enjoyment of childhood, joy of childhood, okay, are missed, are lost. That means in this story writer tells that there are some children in India who are not getting the joy, or you can say that happiness, or you can say that dream, or you can say that the right to school, or you may say that right of seeing, playing. So all these things are missing. There is a big loss. So in this story writer is telling that there are some children in India who are not getting joy, who are not getting joy or happiness or dream or right to school or right of seeing or playing game, etc. Point clear? So that means question arises here that why? Question arises why? That why these children are not getting? First of all, so this story is divided into two parts. Okay, in one story, that means in one part, story of rag pickers. And the second part talks about the story of bangle makers. Here in this story the main character or the main pivotal character is Sahib A Alam, and here in this story the main character is Mukesh. Okay, now writer Anis Jung is narrating the story from the mouthpiece of Sahib Alam. Anis Jung is narrating the story of living of bangle makers from the mouth of Mukesh. Point clear? So we will see here that means what is the reason behind Sahib Alam's problem. ये रीजन क्या है? साहिब आलम की जिंदगी को जो है नर्क बना हुआ है. साहिब आलम की जिंदगी नर्क बना हुआ है. यू कैन से दैट हेलिस लाइफ है. यू कैन से दैट वेरी डंप रैग पिकर्स की तरह. दैट मींस दे आर स्काउंजिंग और सर्चिंग heaps of garbage area. लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? Who are the reasons? Who has created such kind of problems?
कौन लोग ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, वी विल सी इट यहाँ पे ऑल्सो। इन लोगों की लाइफ में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, वी विल सी स्टेप बाय स्टेप। आइए आपको दिखा दे थोड़ा सा जो है लाइफ यहाँ पे बता दे, हाँ, कि इन लोगों की लाइफ, रैग पिकर्स की लाइफ में कुछ हद तक बेटा जो है दैट मींस द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय, प्रॉब्लम इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्टॉर्म, स्टॉर्म, यू कैन से दैट इन नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी। और इन लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं वो है दैट मींस हाँ ह्यूमन मेड, हाँ दीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड, हाँ, और ह्यूमन मेड प्रॉब्लम, ह्यूमन मेड प्रॉब्लम, यानी कि इन लोगों की लाइफ में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, ठीक है। जैसे कोई इंसान किसी को ब्लैकमेल करता है, किसी का वेज पूरा नहीं देता है, किसी का लेबर कॉस्ट पूरा नहीं देता है, तो फिर क्या होगा, वो लेबर की जिंदगी का प्रोग्रेस नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो मार खाएगा। तो दैट मींस बैंगल्स मेकर्स की कहानी कुछ ऐसा है, दैट मींस दे आर पुअर, दे रिमेन पुअर, वो लोग पुअर रह गए हैं, समाज में वो लोग पुअर रह गए हैं। किस वजह से, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के उन लोगों को प्रॉपर वेज नहीं देते, प्रॉपर लेबर कॉस्ट नहीं देते। और इन लोगों की लाइफ में, रैग पिकर्स की लाइफ में, ये लोग कुछ हद तक जो है नेचर्स कैलामिटी का विक्टिम है, पॉवर्टी इज द मेन रीजन है। ओके, नाउ हियर नॉट ओनली दैट, इवन देन आफ्टर दिस जो सरकार है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग नेग्लिजेंट एटीट्यूड। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने बताया, हाँ, ये एक बेसिक आइडिया है। एंड नाउ वी विल सी द स्टोरी ऑफ रैग पिकर्स एज वेल एज वी विल सी द स्टोरी ऑफ बैंगल मेकर्स। तो दिस मच इज क्लियर टू यू। आइए यहाँ पे द स्टोरी जैसे स्टार्ट होता है तो फिर हमें दिखने को मिलता है क्या, अनीस जंग मिलते हैं कुछ रैग पिकर्स के साथ, और उस रैग पिकर्स का जो लीडर है वो है साहिब आलम, ठीक है। इन दिस स्टोरी राइटर इन द बिगिनिंग पार्ट और इन द फर्स्ट पार्ट राइटर इज टॉकिंग विथ हुम, साहिब आलम। तो साहिब आलम के साथ बात करती है कौन, अनीस जंग, लेडी राइटर है, जर्नलिस्ट है, तो ये रिपोर्टर है, हाँ। तो साहिब आलम को जो है नंगा पैर, दैट मींस पीठ में जो है झोला है, पीठ में एक प्लास्टिक बैग ले रखा है, और उसके साथ, हाँ, ये साहिब आलम के साथ जो है और भी सारे जो है चिल्ड्रंस लोग जो है एक साथ नंगा पैर, आधा नंगा कंडीशन में जो है बैग लेके और प्लास्टिक बैग लेके जो है कूड़े कबाड़े जो है बिनने चले गए। फिर रास्ते में देख करके जो है अनीस जंग उनको होल्ड करते हैं, बेटा रुको रुको रुको, वेयर आर यू गोइंग। तो फिर उनसे जो है बात शुरू हो जाती है फिर साहिब आलम से, और बात शुरू हो जाती है तो साहिब आलम अपनी जुबान से ये कहते हैं उनको कि वी हैव कम फ्रॉम ढाका ऑफ बांग्लादेश, ढाका ऑफ बांग्लादेश, ओके, ढाका ऑफ बांग्लादेश से आए हैं दिल्ली, शिमापुरी ऑफ दिल्ली। तो आके शिमापुरी ऑफ दिल्ली में, दैट मींस दिल्ली का शिमापुरी जो एरिया है, शिमापुरी एरिया में अबाउट 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग देयर, अबाउट 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग देयर। अच्छा, ये ढाका से आए हैं। आपको एक चीज बता दे, हाँ, कभी ये इंडिया, दैट मींस बांग्लादेश इंडिया की पार्ट हुआ करते थे, कभी पाकिस्तान भी जो है इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे। तो दैट मींस उस वक्त, जिस वक्त ये लोग आए हुए हैं, ठीक है, तो उस वक्त यू कैन से दैट ये इंडिया एक सिंपल, दैट मींस सिंगल पार्ट हुआ करता था, राइट। तो जो लोकल एरिया से लोग जॉब सिक्योरिटी के पर्पज में या फिर दैट मींस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की पर्पज में क्या कहाँ चले जाते हैं, दैट मींस बिगर एरिया ऑफ द सिटी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हो कि इलाहाबाद में हो, इलाहाबाद में सपोज कि अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी आपको जॉब चांस नहीं मिल रहा है ना, यू आर नॉट गेटिंग ए जॉब, ठीक है, और वर्क स्कोप, तो फिर आप चले जाओगे मुंबई नहीं हुआ तो दैट मींस आउट ऑफ द कंट्री चले जाओगे। तो एक जनरल टेंडेंसी एकदम लोकल एरिया में जो डे वेज है, हाँ, दैट मींस डेली अर्निंग लेबर है, उन लोगों को अगर लोकल एरिया में जॉब नहीं मिलता है, दैट मींस वर्क नहीं मिलता है, तो टाउन एरिया में चले जाते हैं, 20 रुपये 50 रुपये खर्च करके टाउन एरिया में चले जाते हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं दे विल अर्न फॉर द डेज लिवली। ओके, सो साहिब आलम, उनकी मम्मी पापा सब लोग जो है ढाका और बांग्लादेश से सीमापुरी आए हैं। रीजन क्या था? रीजन ये था कि दैट मींस बांग्लादेश एरिया में उस वक्त जो है दैट मींस बहुत ज्यादा स्टॉर्म हुआ करते थे, खास करके आज भी जो है। तो बांग्लादेश का जो कुछ पर्टिकुलर एरिया है, वो एरिया में आज भी दैट मींस वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आता है, राइट, स्टॉर्म आता है। और स्टॉर्म आने की वजह से जनरली क्या होता है, दैट मींस जो सैंड है, सैंड उन लोगों की कल्टिवेटेड एरिया को कवर अप कर देते हैं, राइट। दैट मींस कल्टिवेटेड एरिया को कवर अप करने की वजह से दैट मींस क्रॉप कल्टिवेशन नहीं हुआ, उन लोगों की कल्टिवेटेड लैंड, क्रॉप लैंड टर्न इनटू डेजर्ट एरिया।
तो उन्होंने सोचा दैट मीन्स सब लोग ये सोचे दैट मीन्स किसी के पास क्या उधार मांगे क्या करे, उससे बेहतर है कि चलो सब लोग हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, दिल्ली एरिया में। तो दिल्ली एरिया में जाएंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क सेट हो जाएगा और फिर जिंदगी अच्छी तरीके से बीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आके क्या होने लगे, दैट मीन्स तिरपॉल हाट बना करके यहाँ पे जो है रहने लगे, छोटे छोटे जो है हाट बना करके ये लोग रहने लगे। अच्छा, जो एल्डर्स लोग हैं, एल्डर्स लोग फिर इन लोगों के पास कोई वर्क, ऐसे कायदे का वर्क्स नहीं मिला। जैसे कुछ लोग होते हैं राजमिस्त्री का वर्क करते हैं, कुछ कारपेंटरी वर्क करते हैं, दिस एंड दैट करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की गार्जियन को भी जो है, गार्जियन को भी कायदे से ऐसा वर्क नहीं मिला। तो करते क्या है, जो हीप डंप्स है, दैट मीन्स हीप जहाँ पे रखा हुआ है, दैट मीन्स गार्बेज का जो है डंप्स रखा हुआ है, ठीक है, तो वहीं पे ये लोग जो है उसको स्क्राउंस करते हैं, बीनते हैं, सर्च आउट करते हैं। और सर्च आउट करते करते इन लोगों को क्या मिल जाता है, दैट मीन्स समटाइम्स ये लोग कॉइन मिल जाता है, कहीं नोट मिल जाता है, कहीं कपड़ा मिल जाता है, कहीं प्लास्टिक मिल जाता है, कहीं दैट मीन्स और भी कुछ ऐसे एसेसरीज थिंग मिल जाता है जो उसको मार्केट में कबाड़ मार्केट में सेल आउट करते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है, दैट मीन्स उसी पैसे से इन लोगों की लिवलीहुड बन जाता है फिर। ओके, तो गार्बेज का दो मीनिंग है, गार्बेज का दो मीनिंग है। चिल्ड्रंस के लिए क्या है, गिफ्ट है, चिल्ड्रन के लिए गिफ्ट है। और फिर रैप्ड इन वंडर्स, WRAPP, रैप्ड इन वंडर। और एल्डर्स के लिए क्या है, दैट मीन्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल्स, MEANS, मीन्स ऑफ सर्वाइवल्स, ठीक है। तो अभी राइटर यहाँ पे देख रहा है कि दैट मीन्स फर्स्ट टाइम जब जो है अनीस जंग साहिब आलम से बात की, तो साहिब आलम से बात करने में ये देखे साहिब आलम बहुत ही बिंदास है, केयर फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, नंगे आधे नंगे कंडीशन में रह रहे, बेयर फुट हैं, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ फूड, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ क्लोथ्स, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ लिवलीहुड, बट इवन देन ये खुद का राजा है। कौन, साहिब आलम, मीन्स अपना जिंदगी का राजा है, खेल कूद में ये मस्त है, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, राइट। और फिर यही डम्प्स, कहीं कूड़ा कबाड़े में से जो है कुछ 10 रुपए का नोट मिल जाता है, 50 रुपए का नोट मिल जाता है, तो फिर जिंदगी बन गया। वो लोग यही सोचते हैं कि आज तो आज एकदम खुश हो गया, फिर चल यार पार्टी वार्टी करते हैं। तो दैट मीन्स इस तरीके से ये लोग जिंदगी जीते हैं। अच्छा, कुछ दिन बाद जो है साहिब अनीस जंग को उसी दिन कहें कि साहिब आलम से पूछे कि बेटा ये बताओ, अगर तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, अगर स्कूल में ओपन करूंगी तो तुम जाओगे। साहिब आलम कहें कि मैडम, यस मैडम। तो ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद जो है फिर दोबारा साहिब आलम उनसे मुलाकात करती हैं फिर, और मुलाकात करने के बाद फिर साहिब आलम पूछते हैं, मैडम इज योर स्कूल रेडी, हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं। तो ये जो फिर अनीस जंग जो है दैट मीन्स अनीस जंग टर्न्ड एम्बेरस्ड इसीलिए हो गया कि दैट मीन्स ऐसा प्रॉमिस इन लोगों को कितना सारे सुनने को मिलता है, कितने सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, रिच पर्सन्स होते हैं, इन लोगों से काम उठाने के लिए, काम निकालने के लिए क्या करते हैं, कितने सारे प्रॉमिस दे देते, चलो बेटा ये वाला काम कर दो तो तुम्हें अच्छा कपड़ा देंगे, ब्रांडेड शूज देंगे, हाँ तुम्हें बाइक दे देंगे। तो इस टाइप का कुछ प्रॉमिस करके उन लोगों से काम उठा लेते हैं, फिर काम निकल जाता है, फिर वो लोग 9 तो 11 हो जाते हैं। तो ठीक यही चीज अनीस जंग को भी समझ में आया, ये गरीब चिल्ड्रेनों को, ये बेसहारे हेल्पलेस चिल्ड्रेन को ना जाने एक्सप्लॉइट किस हिसाब से लोग करते हैं। कितना सारे प्रॉमिस इन लोगों के कान में सुनने को मिलता है, लेकिन ये प्रॉमिस कभी पूरा नहीं होता है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था स्कूल ओपन करने के लिए, और स्कूल जैसे ओपन हो जाएगा तो फिर उसी स्कूल में इन लोगों को चांस मिलेगा आके पढ़ने के, बट मैंने तो ऐसे कैजुअली कह दिया था। तो अनीस जंग फील सॉरी फॉर दिस। तो दैट मीन्स ये जो ड्रीम है इसका, किसका, स्कूलिंग का जो ड्रीम है, अनीस जंग यहाँ पे फील सॉरी, ये ड्रीम लॉस्ट है, ये सपना स्कूल जाने का, ये सपना इन लोगों के लिए लॉस्ट है। क्यों इसीलिए लॉस्ट है कि दैट मीन्स आसपास में कोई ऐसा स्कूल भी नहीं है, और अगर स्कूल भी है तो स्कूल की जो फीस है, फीस भरने के लिए इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है। जब कैपेसिटी नहीं है तो फिर नो चांस। अच्छा, अगर सरकारी स्कूल भी है अगल बगल में तो फिर सरकारी स्कूल में भी ये लोग नहीं जा सकते। किस लिए? क्योंकि ये लोग यहाँ के बासिंदा नहीं हैं, ये लोग रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी की तरह जो है हाट बना करके किसी तरह रह रहे हैं। तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। ये जो रिफ्यूजी की तरह ये लोग रह रहे हैं, टेम्पोररी लिविंग रह रहे हैं, दैट मीन्स ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राइटर कह रहा है कि व्हाई सरकार, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर अबाउट देम। एनीवे, ये स्टोरी आगे बढ़ता है, और स्टोरी जब आगे बढ़ता है तो फिर जो है आपके पास और एक सिचुएशन क्रिएट होता है। दैट मीन्स राइटर सोच रही है कि ये साहिब आलम, क्या ये साहिब आलम का मीनिंग इनको मालूम है? साहिब मीन्स लॉर्ड होता है, आलम मीन्स यूनिवर्सिटी होता है, सॉरी यूनिवर्स होता है, यानी कि वर्ल्ड का राजा है। लेकिन प्रैक्टिकली ये तो बेगर ऑफ द वर्ल्ड, बेगर ऑफ द वर्ल्ड, हेल्पलेस चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड। कितना आयरनिकल वर्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइम साहिब आलम को दिखा कि एक रिच क्लास, दैट मीन्स उसी मार्केट में से घूमते हुए आ रहे हैं, दैट मीन्स रिच क्लास पीपल किसी जगह पे टेनिस एरेना है, टेनिस कोर्ट है, टेनिस का कोर्ट है, और उसमें वो रेलिंग पकड़ करके खड़े रहते हैं।
रेलिंग पकड़ करके खड़े रहते, दैट मीन्स वहाँ पे टेनिस वो वॉच करते हैं, और टेनिस वॉच करते हैं, और फिर टेनिस खेल देख करके इनका भी सपना जो है सोचते हैं कि दैट मीन्स मैं भी खेलूँ। लेकिन मैं भी खेलूँ तो फिर वो जो रिच पर्सन जो है सब लोग खेलते हैं तो उनके साथ वो चांस नहीं मिलता है उनको जाने का। अरे टेनिस खेलने के लिए क्या चाहिए? बूट्स चाहिए, दैट मीन्स शूज चाहिए, ट्राउजर चाहिए, राइट, हाँ, शॉर्ट्स चाहिए होता है। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? ये तो रिच नहीं है, इनके पास तो पैसा नहीं है। और ना वो रिच पर्सन लोग जो लोग खेल रहे हैं वो लोग इनको सिंपैथी शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, राइट। तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। तो वही दैट मीन्स हेल्पलेस चाइल्ड की तरह वो रेलिंग पकड़ के खड़े रहते हैं, और फिर खड़े होकर जो है ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, राइट, ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। और देखा, ये तो हमने पहले बताया कि दैट मीन्स ही वॉक्स बेयर फुट, नंगा पैर चलते हैं, बेयर फुट, ओके। ये जो बेयर फुट चलते हैं इनके पास कुछ है ही नहीं। तो फिर एक बार जो है दैट मीन्स जो लोग टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलते खेलते इनके पास तो ब्रांडेड शूज होता है, ब्रांडेड शूज में थोड़ा सा एक जगह पे होल हो गया और फिर वो शूज को निकाल करके फेंक दिया। कौन लोग? दैट मीन्स दोज हु आर प्लेइंग टेनिस, ठीक है। तो साहिब आलम उस जूता को उठा लिया और फिर क्या किया? पैरों पे जो है पहन लिया है। दैट मीन्स इनके लिए, साहिब आलम के लिए क्या हो गया? ये जूता जो है दैट मीन्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मीन्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बेटर देन नथिंग, ना होने से बेहतर है कुछ हो, देन नथिंग, ओके। तो ये अब इनका ऐसा लगा दैट मीन्स छोटा सा होल है, छेद है जूते में, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम है ना। तो दैट मीन्स इनको लगा कि दैट मीन्स इनका लॉन्ग चेरिश ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दैट मीन्स व्हाई ही कांट रीच और व्हाई ही कांट प्ले टेनिस, क्योंकि इट इज आउट ऑफ हिज रीच, आउट ऑफ हिज कैपेसिटी, आउट ऑफ हिज एबिलिटी टू कैरी ऑन और टू अफोर्ड द गेम। हाँ, तो ये सब चीज है। अच्छा, अनिस जंग में पूछते हैं कि बेटा तुम लोग हाँ वो क्यों नहीं करते हो, दैट मीन्स क्यों नंगा पैर चलते हो? तो फिर वहाँ पे उनके साथ जो और भी जो दोस्त यार थे तो कहते हैं कि मैडम, इनकी अम्मी जो है इनको जूता जो दैट मीन्स जो चप्पल जो है शेल्फ में रखती हैं और शेल्फ से निकाल करके नहीं देती हैं, क्योंकि ये लॉस कर देते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम अराइज दैट मीन्स लॉस करना या फिर शेल्फ से, शूज रैक से निकाल करके ना देना, इसके पीछे रीजन ये है, देखो हर गरीब लोगों का भी एक सेलिब्रेशन का एक सिस्टम है। हर गरीब लोग दैट मीन्स हर लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से जिंदगी को जीता है, और हर ओकेजन पे वो लोग ओकेजन एज वेल एज फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। मान लेते हो कि एक गरीब लोग जिनके पास जो है अर्निंग बहुत कम है, तो उनके पास भी एक दो ऐसे कपड़ा होगा, ऐसे चप्पल होगा, ऐसे कुछ वो होगा। सपोज कि कल की डेट में कोई शादी ब्याह पड़ा बगल में या फिर कोई फेस्टिवल हुआ, तो उस दिन वो लोग क्या करते हैं? उस दिन वो लोग अपना जितना है कैपेसिटी के अनुसार अच्छा कपड़ा पहनते हैं, और अच्छा कपड़ा पहनने के बाद वो सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसको फोल्ड करके रख देते हैं। और बाकी दिन नॉर्मल डेज क्या करते हैं? नॉर्मल डेज अधनंगा कंडीशन में चलते हैं, दिन गुजारा हो जाता है। तो ये भी एक लाइफ स्टाइल है। यानी कि यहाँ पे राइटर फोकस किए हैं कि दैट मीन्स दे आर सो पुअर, ये लोग इतने पुअर हैं कि दैट मीन्स जो जनरल डेज पास आउट करते हैं वो लोग किसी तरह दैट मीन्स अधनंगे कंडीशन में हैं, खाली पेट रहते हैं। कभी कभी ये लोग रात में सोते हैं, खाली पेट भी सो जाते हैं, खुले आसमान के भी नीचे कभी सो जाते हैं। तो ये जो सैक्रिफाइस है, इनके पास क्या नहीं है? ये सारे फैसिलिटीज नहीं है, ये सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसका पीछे रीजन कौन है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि दैट मीन्स नेचुरल कैलामिटी, स्टॉर्म की वजह से। नहीं तो फिर अगर अपने जमीन पे ये लोग फसल उगा के रहते तो शायद कुछ हद तक जो है सही रहता। लेकिन राइटर ने कहा है कि चलो नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये लोग विक्टिमाइज तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कर रहे हैं? वाई दैट मीन्स दिस 10,000 पीपल आर लिविंग देयर। हाँ, तो यहाँ पे अनिस जंग, यहाँ पे राइटर को भी अनिस जंग यहाँ पे हाँ दिल्ली की सरकार को भी जो है फोकस किए हैं। और कैसे किए हैं? देखो, ये जो दिल्ली है, दिल्ली की सीमापुरी एरिया है, दिल्ली का मतलब होता है डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड एरिया, फैसिलिटी में भरा हुआ, ठीक है। तो दिल्ली का नाम सुन के सभी लोग ये सोचते हैं कि दैट मीन्स दिल्ली इज व्हाट, दिल्ली का मतलब डेवलप्ड सिटी है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जिसका नाम है सीमापुरी है। और सीमापुरी में जो है 10,000 रैट पिकर्स एक ही साथ रह रहे हैं, कोई हाट में रह रहे हैं। दैट मीन्स किस हाल में रह रहे हैं? राइटर फोकस कर रहे हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो रनिंग वाटर, नो वाटर सप्लाई, नो ड्रेनेज सिस्टम्स, और फिर क्या नहीं है? नो, अच्छा लिव अंडर टर्पोलिन्स, लिव इन टर्पोलिन हट, PAULIN, टर्पोलिन हट, ओके। और फिर क्या है? दैट मीन्स फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर लाइफ, देन देयर
आइडेंटिटी। फूड, राइटर इज टेलिंग दैट मींस इन लोगों के लिए फूड इज मोर इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल देन आइडेंटिटी। तो ये जो पॉइंट है राइटर बहुत ही सिंपैथेटिकली कह रहे हैं, बहुत ही हेल्पलेसली कह रही है क्योंकि ये लोग इस हाल में रह रहे हैं, हाँ, और फिर कोई गाली दे के भी कुछ खाने का ऑफर करे या फिर कपड़ा ऑफर कर दे तो भी ये लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप ये बताओ, कोई गाली बकेगा और फिर आपको कुछ ऑफर करेगा, गिफ्ट ऑफर करेगा, आप लोगे? नहीं लोगे। क्यों? भाई अपना स्टेटस है, हम बिन खा के मर जाएंगे, हम बिन कपड़े से जो है क्या नाम है, हम अपने घर पे जो है गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी का गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की क्रुएलिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन में इस हाल में कभी नहीं रहे हैं। लेकिन इन लोगों का, राइटर का कहने का मतलब है, इन लोगों की जो लिविंग कंडीशन, न जाने कितने सालों से वहां पे रह रहे हैं, रहते 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 वहां पे ये लोग इतना सह लिया है, इतना सह लिया है, इतना जो है देख लिया है कि कुछ भी दे, लेकिन खाना दे रहा है ना, कपड़ा दे रहा है ना, ले लो। नो प्रेस्टीज इशू, नो स्टेटस सिंबल, अब कुछ नहीं है, खाना मिला, उसके बाद ये सब लोग भी भूल जाते हैं। दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लोथ सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, स्टेइंग ड्वेलिंग सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी, देन देयर स्टेटस। ये लाइफ कंडीशन है। तो व्हाई नॉट, पॉइंट इज दैट व्हाई नॉट द सरकार, व्हाई नॉट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज फोकसिंग ऑन देयर लाइफ। दैट मींस राइटर इस जगह की लिवलीहुड को एज ए पिक्चर की तरह, वीडियो की तरह यहाँ पे दिखाएंगे, दिखा करके दिखाएं कि देखो ये लोग इस हाल में रह रहे हैं। आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात, दैट मींस दिल्ली इज ए डेवलप्ड एरिया कहते हो आप, और हार्ट ऑफ द एंटायर कंट्री कहते हो, कैपिटल ऑफ द एंटायर कंट्री कहते हो, लेकिन यहाँ की जो है लोकेशन को देखो, फोकस करो। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये लोग तो मर रहे हैं, दैट मींस दे आर ऑलमोस्ट डाइंग, दे आर क्राइंग। लेकिन इन लोगों की जो डिप्लोरेबल कंडीशन है, इन लोगों की जो डिप्लोरेबल कंडीशन है, हेल्पलेस कंडीशन है, इसको कौन देख रहा है? देखने वाला कोई नहीं है। तो राइटर यहां पे यही चीज बताए कि दैट मींस हाउ दे आर एक्सप्लॉइटेड। यहां पे केयरलेस करना, इग्नोर करना, बेटा इग्नोर करके, दैट मींस सरकार जो इग्नोर कर देना, इग्नोर करके इन लोगों का जो इस हाल में छोड़ देने का मतलब क्या है? एक एक्सप्लॉइटेशन है। कोई लोग डायरेक्टली आके एक्सप्लॉइट करे, और कोई लोग जो जिम्मेदार, जिनके हम जिम्मेदार बनाए हैं, किसको हम इलेक्शन में उनको जिताए हैं, दैट मींस ही विल, इनके पास तो खजाना है, कंट्री का जो सोर्स ऑफ इनकम है, उस वहां से इन लोगों की वेलफेयर करना है। बट क्या है? सरकार इज इग्नोरिंग देम, इग्नोर करके इन लोगों की लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इग्नोर करके इन लोगों को इग्नोर करके यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस दैट मींस मेटाफोरिकली शिमापुरी इज ए माइल्स अवे। माइल्स अवे का मतलब है बहुत दूर है, मींस दिल्ली को अगर माना जाए दैट मींस ह्यूमन फैसिलिटी में ये सबसे आगे है, डेवलपमेंट में सबसे आगे है। तो अगर ये बात है तो फिर ये जान लीजिए शिमापुरी अभी बहुत दूर है, उस डेवलपमेंट की मार्क में शिमापुरी आज बहुत दूर है, जैसे कि किसी गांव एरिया में है, केवल इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, हाँ, पावर सप्लाई है ही नहीं, दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये स्टोरी ऑलमोस्ट इसी तरह है। और एक जगह पे है, कहीं आपको जो है दैट मींस उदीपी का है, एक बच्चा है दैट मींस हाँ, उदीपी एक जगह है, उस वहाँ पे एक बच्चा है दैट मींस प्रीस्ट के घर पे एक छोटा बच्चा, प्रीस्ट का मतलब है प्रीस्ट बोलिए, मौलाना बोलिए, हाँ, क्या है? इन लोगों के नाम पे राइटर के कहना मतलब है कि इन लोगों की लाइफ बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता है, पुअर नहीं है, बट देयर लाइफ इज नॉट सो मच स्टैंडर्ड वंस। तो प्रीस्ट के घर के जो लड़का है, तो फिर वो लड़का जो दैट मींस ही ऑफर्स प्रेयर टू गॉडेसेस, ओ गॉड, हमें एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, स्कूल जा रहे हैं, दिस एंड दैट कर रहे हैं, तो फिर नंगा पैर अच्छा नहीं, अम्मा, माता जी, अब नेक्स्ट ईयर 6 महीने बाद हमें क्या चाहिए? तो इसी तरह राइटर का कहने का मतलब है कि दैट मींस दिस बॉय वाज आस्किंग, विस्परिंग, ऑफरिंग प्रेयर टू हिज गॉड फॉर व्हाट? जस्ट पेयर ऑफ शूज, जस्ट पेयर ऑफ शूज। लेकिन क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम दैट मींस राइटर जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चा जो है, जो स्कूल से आते हैं और स्कूल से आके जूता उतार करके एकदम आसमान में छोड़ देता है। ये भी एक जॉय है। छोटे बच्चे जब स्कूल से आते हैं, घर पे आते हैं, तो फिर दैट मींस स्कूल बैग को ड्रॉप करते हैं, फिर जो है वो डांस करना शुरू कर देते हैं, फिर वो डांस करते हैं, कभी जो है सॉक्स को उठा दिया हवा में, राइट? ये एक काइंड ऑफ क्या है? गेम है, प्ले है, एंजॉयमेंट है। लेकिन जानते हो ये सब, ये साहिब आलम की लाइफ में से, ये रैग पिकर्स की लाइफ में से क्या है? ये आउट है, ये आउट है। लास्ट में एकदम लास्ट ऑफ दिस दिस पार्ट, ये पार्ट की स्टोरी की लास्ट पार्ट में क्या है कि साहिब आलम अब कहीं ना इधर स्कूलिंग मिला, कहीं नहीं मिला, तो एक जाके जो नेक्स्ट उन्होंने कोशिश किया कि हम क्यों ना टी स्टॉल में काम कर लें, टी स्टॉल में दैट मींस सर्विस बॉय का काम कर ले। और सर्विस बॉय का जब काम पकड़ लिया है इसने, तो फिर दैट मींस देयर इज ए फूड सिक्योरिटी,
हाँ, देयर इज अ फूड सिक्योरिटी। कैसे फूड सिक्योरिटी है? देखो, टी स्टॉल में अब ये क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ वेदर ही इज गेटिंग, अच्छा ही इज हैप्पी और नो हैप्पी, नॉट हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल। तो एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम जो है स्टोरी के लास्ट में आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ व्हाई वेयर दिस बॉय इज वर्किंग, साहिब आलम इज नाउ वर्किंग इन दैट टी स्टॉल एंड 800 पर मंथ इज गेटिंग एंड नाउ ही इज गेटिंग मील ऑल्सो। हाँ, गेटिंग और गेटिंग क्या है? मील। ओके, तो फूड सिक्योरिटी है, मनी सिक्योरिटी है, हाँ, और तो ऑटोमेटिकली क्लोथ सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योर है। बट क्या है? तो ये अगर आप सपोर्ट करोगे कि हाँ सर वो सिक्योर है तो हैप्पी है, ठीक है, बट आई विल से नो ही इज नॉट हैप्पी। वो कैसे हैप्पी नहीं है? ही कैरीज हेवी कैनिस्टर्स, HEAVY, हेवी कैनिस्टर्स। दैट मीन्स दूध का पल्टा लेके अब जो है बूथ से, मिल्क बूथ से दूध लाना पड़ता है, और फिर क्या होता है? दैट मीन्स दैट हेवी कैनिस्टर्स जो हेवी है वो मिल्क बूथ से, हाँ, कैरीज, हाँ, फ्रॉम मिल्क बूथ। और क्या है? दैट मीन्स ही इज कंट्रोल्ड बाय द स्टॉल कीपर, यानी कि ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अभी स्टॉल कीपर चाहेंगे उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा, घूरेगा तो फिर जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वे कभी जो है आके कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर आके जो उठा के जो है एक झापड़ भी मार देते हैं, तो दैट मीन्स दिस लाइफ इज नॉट हैप्पी लाइफ। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, आप इस आंसर को दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों ही सपोर्ट है। सीबीएसई बोर्ड में इसको दोनों आंसर को सपोर्ट किया गया है। अगर ये वाला पॉइंट लिखते हो तो दैट मीन्स करेक्ट है, ये वाला पॉइंट लिखते हो तो भी करेक्ट है, यहाँ भी 2 पॉइंट है, और भी मोर पॉइंट यू कैन राइट अप, ठीक है। सो दिस वे देखो गया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? बैंगल मेकर्स। अरे वाह, नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट बैंगल मेकर्स। बैंगल चूड़ी का जो है, हाँ, शीशे का बैंगल है, फिर मेटल्स का बैंगल है, आप जानते हो बैंगल। और आपको बता दें बैंगल इज इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया में क्या है? दैट मीन्स इन ऑल द कंटिनेंट्स, हाँ, इन ऑल द कंटिनेंट्स बैंगल मेकिंग फैक्ट्री इज द लार्जेस्ट glass going factory and that is in India, and that is in which part of India, you know? हाँ, यूपी का फिरोजाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बेटा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फिरोजाबाद है। तो ये फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा ग्लास ग्लोइंग फैक्ट्री है, बैंगल मेकिंग फैक्ट्री है, ओके। तो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री है, कंपनी है, तो यहाँ पे तो स्कोप अच्छा होना चाहिए, लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। बट सॉरी बेटा, आप जितना सोचते हो, जितना जैसे कि कहा है ना कि चराग तले ही अंधेरा होता है, तो कुछ इस स्टोरी में भी यही कुछ कहानी है। तो अनिस जंग जो कि एक रिपोर्टर है, तो डिफरेंट जगह की दैट मीन्स ये जो एक्सप्लॉइटेशन को उन्होंने हाईलाइट किए हैं। कहाँ चाइल्डहुड दैट मीन्स चिल्ड्रेन्स आर कहाँ एक्सप्लॉइट होता है, मैनिपुलेट होते हैं, कहाँ उन लोगों की राइट मिसयूज होता है। तो ये राइटर ने बाखूबी यहाँ पे स्टोरी में दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ के दैट मीन्स एक मुकेश नाम का एक लड़का मिला, तो फिर मुकेश के साथ जो है ये अनिस जंग कहाँ घूमती हैं? बैंगल मेकिंग एरिया पे घूमती रहती हैं, घूम के रिपोर्ट कलेक्ट करती हैं। तो फिर दैट मीन्स अब सबसे पहले जो मुकेश के घर गई है वो मुकेश के घर पे दैट मीन्स जब मुकेश की दादी अम्मा से मुलाकात की, और फिर दादी अम्मा से मुलाकात करके जो डिफरेंट सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है, ठीक है। मुकेश के घर पे दैट मीन्स डॉटर इन लॉ है, मुकेश की सिस्टर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ कौन है? मुकेश का भाभी है। तो ये भाभी इतनी पतली दुबली है, इतने वो है कि हाँ, पूरी घर का जो है ये खाना पकाती हैं, जिम्मेदारी उठाती हैं, और फिर इस घर पे इनको बहू का स्टेटस मिला है। बहू का स्टेटस इसीलिए मिला है दैट मीन्स घर पे जो भी कोई एल्डर पर्सन आते हैं तो फिर घूंघाट उतार देती हैं और फिर दरवाजा से अंदर होके दीवार के पीछे छिप जाती हैं, राइट। और ओबीडियंटली सारे काम जो है, घर के सारे काम जो है करती हैं। ये लेडीज हैं, ओके। फ्रेल यंग वुमेन, ये फ्रेल FRAIL, फ्रेल बोले तो वीक है, फिजिकली वीक है,
फ्रेल यंग वुमेन, बहुत ही कम उम्र की हैं, और ये घर की सारी जिम्मेदारी, दैट मीन्स खाना पकाना, घर को मैनेज कर रखना, दैट मीन्स पोछा झाड़ू बर्तन ये सब कुछ करना, ये सब इसकी जिम्मेदारी है, भाभी की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे घर पे जितने सारे मेल मेंबर्स है, वो सारे मेल मेंबर्स क्या करते हैं, वो सारे मेल मेंबर्स सब लोग मिल करके बैंगल मेकिंग करते हैं। अच्छा, राइटर यहाँ पे बताए हैं कि दैट मीन्स बैंगल मेकिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बैंगल मेकिंग करने में जितना सफरिंग कंडीशन है, सफरिंग कंडीशन SUFFERING, सफरिंग कंडीशन क्या है, दैट मीन्स दे वर्क अंडर द फर्नेस, वर्क अंडर हॉट फर्नेस, फर्नेस बोले तो भट्टी, चुल्ली के नीचे बैठ के जो है ये लोग काम करते हैं, एक पॉइंट हो गया। और फिर दे वर्क इन द डिंजी सेल, इन डिंजी सेल्स, DINGY, डिंजी सेल बोले तो चेंबर लाइक, छोटा सा घर लाइक चेंबर लाइक वहाँ पे। और डिंजी सेल मीन्स ना वहाँ पे लाइट आना जाना है, ना उसमें जो है एयर आना जाना है, मतलब वेंटिलेशन जीरो है। अच्छा, वेंटिलेशन जीरो है, और फिर अंडर हॉट फायर, हॉट फर्नेस, दैट मीन्स फार्नेस है, फार्नेस के इर्द गिर्द आसपास जो है क्या है, छोटा छोटा कमरा बना हुआ है, छोटा छोटा चेंबर लाइक कमरा बना हुआ है, और उस कमरे में क्या नहीं है, लाइट फैसिलिटी भी नहीं है, एयर फैसिलिटी आने जाने का भी नहीं है। तो दैट मीन्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन ह्यूमन कंडीशंस। और फिर क्या करते राइटर जो है कहते हैं दे स्लॉग SLOG, स्लॉग मीन्स इतना हीटेड कंडीशन में जो है वर्क करते करते दैट मीन्स उन लोगों की बॉडी का जो है पसीना छूटा रहता है, दैट मीन्स पसीना इतना होता है, दैट मीन्स वो लोग हाफ रोस्टेड कंडीशन में हो जाता है, बट मजबूरी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दैट मीन्स ये जो डस्ट है, डस्ट ऑफ ग्लास कभी कभी जो है कैसे आंख में पड़ने के बाद जो है क्या होता है कि दैट मीन्स आई साइट लूज हो जाते हैं, कुछ लोग तो ब्लाइंड हो जाते हैं। अरे मुकेश की ग्रैंडफादर ही जो है, मुकेश की ग्रैंडफादर क्या हो गया, मुकेश की ग्रैंडफादर खुद ही जो है ब्लाइंड हो गए, किस वजह से, दैट मीन्स ये जो ग्लास, डस्ट ऑफ ग्लास गिरने की वजह से। ओके, तो ये क्या है उन लोगों की वर्किंग, हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस, हैजर्ड HAZARD, हैजर्डस DOUS, हैजर्डस वर्किंग कंडीशन है, कहाँ पे, बैंगल मेकिंग में। लेकिन यहाँ पे सब लोग दैट मीन्स सब लोग मिलके वही काम करते हैं। अबाउट 20,000 लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है, 20,000। जो एरिया फिरोजाबाद का जो मेन सिटी एरिया है वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, और वहाँ पे दैट मीन्स गार्जियन, मम्मी पापा और चिल्ड्रन के साथ एक साथ बैठ के ये लोग जो है काम करते हैं। चलो ये तो क्या है, दिन में क्या है, लेकिन रात में चिल्ड्रन लोग स्कूलिंग ना जा करके क्या करते हैं, रात में दैट मीन्स दे सिट with their parents रात में under a flickering oil lamp, FLICK, flickering oil lamp, ठीक है। रात में घर पे, अपने घर पे बैठ के जो है ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं दैट मीन्स वो लैम्प जिसको हम लोग कहते हैं कि डिबरी बोलते हैं, ठीक है, डिबरी बोलते हैं। तो डिबरी का जो केरोसिन लैंप होता है ना, केरोसिन से जलता है, दैट मीन्स यहाँ पे इतना फैसिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होगा, प्रॉपर हाईलाइट होगा। अरे अगर इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा वो कौन देगा फिर, तो इसीलिए ये लोग पैसा बचा लेते हैं। पैसा क्यों नहीं बचाएंगे, दैट मीन्स अर्निंग अगर नहीं होगा तो क्यों यूज करेंगे वो लोग, कहाँ से पैसा आएगा फिर, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि ऑयल लैंप के नीचे रह करके। अच्छा, दिन में भी वर्क किया, रात में भी क्यों वर्क करते हैं, यही तो बात है। ये लोग दिन में भी स्लॉग होके, हाफ रोस्टेड होके काम करते हैं, रात में भी क्यों वर्क करते हैं, व्हाई दे डू वर्क, क्योंकि आज की डेट में बेटा बताओ, आज की डेट में एक जनरल वर्कर्स की 500 से कम किसी का वेज नहीं है, ठीक है। और ये लोग, एक लोग अगर मान लो कि पूरे दिन भर काम करेंगे, फिर भी इनका जो है 500 की जगह पे जो है 50 रुपये इन लोगों को देते हैं। कौन लोग, वो जो मिडिल मैन है, शाहूकार से जो ओनर है, 50 रुपया भी नहीं देते हैं। ऐसे एक लोगों का आप इमेजिन कर सकते हो, पैसा एक दिन में तो नहीं मिलता है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सब जो है ये यहाँ की मिडिल मैन है, शाहूकार से हैं, और फिर जो है पुलिस मैन है, और फिर लॉ कीपर से MP लोग हैं, MLA लोग हैं, सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग मिल करके जो है ये कंपनी चलाते हैं, और सारे ये जो इन लोगों का जो बैंगल मेकर से इन लोगों को लूटते हैं ऐसे ही। तो जब मान लो कि एक फैमिली में क्या है, एक फैमिली का 5 मेंबर से 50-50 का काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो कितना हुआ, बस 250 हुआ। तो एक दिन में अगर इन लोगों का जो है 5 लोगों की फैमिली का जो एक दिन में अगर इनकम 250 होता है, तो फिर ये लोग खाएगा क्या, और फिर ये लोग पहनेगा क्या, सोचे जरा। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहां से भरेगा, जगह है ही नहीं फिर। और इसीलिए राइटर ने कहा है कि इसीलिए देखो, इन लोगों की लिविंग कंडीशन अगर देखना है तो चलो दिखाते हैं। इन लोगों की लिविंग कंडीशन अगर देखोगे तो फिर जो है कंडीशन बहुत ही बेकार हाल है। क्या है, क्या हाल है लिविंग कंडीशंस। मुकेश साथ में राइटर को ले जाते हैं, तो फिर जो है स्टिंकी लेन, STINKY, स्टिंकी लेन,
स्टिंकी लेन बोले तो बदबूदार रास्ता, बदबूदार रास्ता। क्यों? वो जो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन्स आर चोक्ड विथ, और उसमें क्या है, उस ड्रेन में क्या है, गंदगी भरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं, गंदगी भरा हुआ है। और उस गंदगी से बेटा क्या आता है, स्टिंकी आता है, गैस, बदबू फैलता है। और फिर क्या है, यहाँ पे इतनी क्राउडेड लिविंग है क्योंकि स्पेशियस जगह नहीं है। एनिमल एज वेल एज ह्यूमन लिविंग कोएग्जिस्टिंग और लिविंग, ये लोग कैसे रहते हैं? इंसान और जैसे कि बकरी बकरा को भी जो है ये लोग पाल लेते हैं, मुर्गी और बत्तख भी जो है ये लोग पालते हैं। क्यों जानते हो? कि थोड़ा बहुत पर डे अगर इन लोगों के पास इतना वेज होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। उसी में ये लोग थोड़ा सा कि जो इन लोगों के पास जो बेड होता है, हार्ड बेड होता है या फिर जो है चारपाई होता है, उसके नीचे जो है ये लोग को एडजस्ट कर लेते हैं। किसको? ये एनिमल को। तो ये जो इसका जो है यूरिनेट करता होगा, पानी से मतलब तो धोल दिया, ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगा फिर? वो तो उसी एरिया से जाएगा। तो राइटर जब आए हैं यहाँ पे, गुजर कर रही थी, तो फिर देखिए कि दैट मिशन स्टिंकी लेन, और ये ह्यूमन और इंसान एक साथ जो है कि दैट मिशन, जैसे कि लोग पहले जमाने में गाय भैंस एक ही साथ जो है रहते थे, राइट, वैसे लिविंग कंडीशन है। और फिर देखो क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग CRUMBLING, क्रम्बलिंग वॉल्स मीन्स वो वॉल की कंडीशन ऐसा है जैसे कि वॉल गिरने ही वाला है। ओके, और क्या कंडीशन है? उबली डोर, WOBLY, उबली डोर्स का मतलब है वो दरवाजा, उनकी घर की दरवाजा जो है ऐसे लूज फिटिंग से, अब जैसे खोलने जाओगे आप, अगर खोल लोगे तो पक्का क्या नाम है, दरवाजा आपके ऊपर गिर जाएगा। ऐसा लूज फिटिंग है, वो लोग उठाते हैं रखते हैं। दैट मीन्स एक तरफ का जो है जो क्लम्प होता है, क्लम्प क्या नहीं है, लूज हो गया है या फटा हुआ है या फिर है ही नहीं, रस्सी से बंधा हुआ है। तो आप खोलोगे तो आपको तो आदत है झटके से खोलना, ठीक है, लेकिन जैसे झटके से खोलोगे पूरा उखड़ करके आ जाएगा, आपके ऊपर गिर जाएगा। तो ये कंडीशन है। दैट मीन्स राइटर इज टेलिंग दैट ये इस कंडीशन में 20,000 बैंगल मेकर्स रहते हैं। राइटर कहते हैं कि क्यों तुम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हो, ऑर्गेनाइज करो, और फिर जो आवाज उठाते क्यों नहीं हो? सरकार और आपके एरिया में डीएम तो होगा, MP होगा, क्यों आवाज नहीं उठाते हो? तो फिर इन लोगों का कहना है, क्यों नहीं मैडम, हम लोग तो कई बार आवाज उठाए हैं और जम करके जो है क्या नाम है, रिवोल्ट भी किए हैं, लेकिन क्या हुआ? नेक्स्ट डे पुलिस वाला आके हम लोगों को जो है मारते हुए, घसीटते हुए, पुलिस वाला आके घसीटते हुए ले जाके कहाँ पे बंद कर देते हैं? हवाला पे बंद कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और जेल में डालने के बाद वहां पे भी इतना पिटाई होता है, इतना ड्रैगिंग होता है, इतना खिंचातानी होता है कि दैट मीन्स क्या बताएं मैडम, हम लोगों को मजबूरी, दैट मीन्स हम लोगों को सिखा देते हैं, समझा देते हैं कि देखो ये गलत है, ये क्राइम है, नेक्स्ट टाइम अगर करोगे तो फिर बेटा जेल की अट्टा, दैट मीन्स चकीज, फिशिंग एंड पड़े रहोगे, सड़े रहोगे फिर। तो हम लोग भी क्या करते हैं, मजबूरी में हम लोग भी क्या करते हैं, ये जो 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर को हमारे से यहाँ से कट दिया, डाल दिए, तो फिर ये जो है, ये बेटी है, हमारी प्यारी बेटी है, ये बीबी है, और ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा बेटा है। इसको हम किसके लिए, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें? कौन देखेगा? फिर माफी मांगते हुए जो है, गिड़गिड़ाते हुए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कंडीशन है वही कर देते हैं। तो इनकी दादी अम्मा जो है ये कहानी सुनाते सुनाते कह रहे हैं कि दैट मीन्स ये गॉड गिवन लाइनेज है, मीन्स ये काम हम लोगों को तो ऐसा लगने लगा है कि दैट मीन्स ये गॉड से मिली हुई काम है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब उपाय नहीं है, कोई दूसरा काम भी अगर करने जाएंगे तो फिर हमको ये समझा देते हैं कि देखो तुम लोग इलीगल कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम लोगों को जो काम करना है यही काम करो। क्यों हिम्मत जुटाते हो, क्यों आगे सोचते हो? वैसे भी आगे सोचने के लिए क्या चाहिए, कुछ पैसा भी चाहिए। तो जब तुम्हारे पास है नहीं तो क्यों सोचते हो, पड़े रहो। और पड़े रहो यानी कि क्या है, इतनी लो इनकम है। मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं कि दैट मीन्स हमारे हस्बैंड तो पहले तो टेलर हुआ करते थे, और फिर टेलर होने के बाद जब शादी हुई, शादी होने के बाद 2 बेटा हुआ, तो ये सोच में पड़ गए कि जो है इस दोनों बच्चों को अब स्कूलिंग, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई क्या कराया जाए। इसको ऐसा करते हैं कि बैंगल मेकिंग आर्ट सिखाने के लिए स्कूल भेजो, और कुछ दिन आर्ट सीख लेगा, अच्छा बैंगल बना पाएगा, तो फिर क्या होगा, मेरे हाथ बटाएगा, काम में हाथ बटाएगा, अर्निंग होगा, स्टैंडर्ड लाइफ होगा। यही सोच करके तो दोनों लोगों को जो है अच्छे से पढ़ाई स्कूल में भी नहीं भेज पाए हैं। थोड़ा बहुत जो करा पाए हैं वो क्या है, इन लोगों को बैंगल मेकिंग सिखा पाए। हमारे हस्बैंड, मुकेश की ग्रैंड मदर ये कहती है, मुकेश की ग्रैंड फादर तो है क्या नहीं कर पाए,
जो हमारे लिए जो है, हाँ, सर के ऊपर छत भी नहीं बना पाए, अरे ये हाउस को भी रिपेयर नहीं करा पाए। बनाने की बात तो दूर की बात है, बिल्ड करने की तो दूर की बात है। यही हाल हम लोगों का है। राइटर फिर आगे चलते हैं, और चलते चलते जो है और एक फैमिली से मुलाकात करते हैं, और एक फैमिली है जहाँ पे सविता रहते हैं। सविता एक छोटी गर्ल है, हाँ, जैसे मुकेश की दादी के साथ जो है मुकेश की भाभी रह रही थी, हाँ, तो उसी तरह इसका नाम है सविता। देखो सविता, इस स्टोरी में ये जो सिस्टर इन लॉ, इसको भाभी कहा गया है, ठीक है। भाभी किसकी है? भाभी किसकी है? मुकेश की भाभी है, राइट। मुकेश की भाभी, मुकेश की ग्रैंडमदर, मुकेश की ग्रैंडफादर, मुकेश की एल्डर ब्रदर और मुकेश, 5 लोग हैं ये लोग, ठीक है। आ जाओ, सविता दूसरी गर्ल है, दैट मींस सविता, और फिर ये एल्डरली लेडी है और ओमेन है, यू कैन से दैट ओमेन, ठीक है। ये एल्डरली ओमेन है। एल्डरली ओमेन की बगल में बैठ के सविता जो छोटी गर्ल है ये काम कर रही है बैंगल मेकिंग पर। दैट मींस ये बैंगल रोलिंग करना, ये इतना एक्सपर्ट है बैंगल मेकिंग में, बैंगल सजाने में इतना एक्सपर्ट है। अनिस जंग राइटर तो ये हो गए, अरे वाह, इतना ब्यूटीफुल, इतना एक्सपर्ट। काश अगर इसको भी पता होता कि ये जो बैंगल ये बना रही हैं, क्या इसको मालूम है कि व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये बैंगल मेकिंग का मतलब क्या है, बैंगल का इंपॉर्टेंस क्या है, बैंगल का वैल्यू क्या है, काश इसको मालूम हो जाता। राइटर कह रही हैं कि बैंगल स्टैंड्स फॉर द ऑस्पिशियसनेस ऑफ मैरिज, और यू कैन से दैट सुहाग इन हुज लाइफ, वीमेंस लाइफ, ओके। तो बैंगल जनरली हम लोग क्या कहते हैं, लेडीज या गर्ल्स लोग जो है शादी से पहले बैचलर लाइफ में शीशे की बैंगल्स नहीं पहनती, आफ्टर मैरिज खुशी खुशी पहनती है, राइट। तो यही चीज़ बताए हैं। किसी दिन इस सविता को भी क्या होगा, रियलाइज होगा, और इनके भी हाथ में मेहंदी लगेगा, इनके भी हाथ में यहाँ तक जो है रिस्ट पर जो है क्या होगा, बैंगल, हाँ, पहनाया जाएगा, और सर पे दुपट्टा देके इनकी भी वो खुशी मिलेगी, वो सुहाग मिलेगी इनको, किसको, सविता को। लेकिन आज हमें नहीं लग रहा है कि सविता को ये मालूम है। आ जाओ, फिर एल्डरली वोमेन के साथ जो है बात करना शुरू कर दी, कौन, अनिस जंग। एल्डरली वोमेन के साथ जब बात करना शुरू किए हैं तो फिर कहती हैं, बहन, सिस्टर, आपको क्या बताएं कि हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ट्रबल क्या है। ट्रबल, अब सुहाग की बात कर रहे हो मैडम, हम भी तो चूड़ी पहने हुए हैं, हमारे साथ देखो बगल में हमारे हस्बैंड भी हैं, और अब सुहाग की बात करते हो। मेरा अबाउट 60 ईयर से मोर हो गया, जिंदगी बिता रहे हैं हम, हस्बैंड हैं, हाथ में चूड़ी भी हैं, बट देयर इज नो जॉय इन माई लाइफ, देयर इज नो हैप्पीनेस इन माई लाइफ। सुहाग का मतलब क्या है? ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये जो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, इसमें इतना कम पैसा हम लोगों को मिलता है कि इस सुहाग का कोई मतलब ही नहीं है। हम दूसरों लोगों की जिंदगी में सुहाग के लिए काम करते हैं, दूसरों लोगों की जिंदगी को जो है भरपूर आनंद देने के लिए काम करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी तो चौपट हो गया है। जानते हैं बहन, एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, कौन कही है? एल्डरली वोमेन। जिंदगी में एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया। अब खुशी की बात कह रही हो, खुशी तो छोड़ो, राइट, अधिकार तो छोड़ो, और हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि, लेकिन हाँ, जिंदगी भर खाना नहीं खाए हैं, खुशी नहीं मिला है, लेकिन मेरा हस्बैंड, फकर के साथ कह रहे हैं, मेरा हस्बैंड जो कर दिया, वो बहुत सारे लोग इस मोहल्ले के कर नहीं पाया। वो क्या है? मेरे हस्बैंड तो जो है हमारे रहने के लिए छत बनाए हैं। अरे सर के ऊपर छत बनाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये कौन कह रही है? ये है। अब यहां पे देखो, एक चीज देखो, दो वोमेन की बात हो रही है यहाँ पे, एल्डरली वोमेन की बात है और मुकेश की ग्रैंडमदर की बात है। मुकेश की ग्रैंडमदर सहते सहते उसको गॉड गिवन लाइनेज सोचा उन्होंने, और ये लोग जो है सहते सहते ये कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी भर हमने जो है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो ये कंडीशन है, ये डिफरेंस है। राइटर, अब लास्ट में राइटर जो है कमेंट पास कर रहे हैं। क्या कमेंट पास कर रही हैं? कमेंट पास कर रही हैं इसी बात पे कि बैंगल मेकिंग का जो शहर है, इस शहर में हम देख रहे हैं कि दो दुनिया है। देयर आर टू वर्ल्ड्स इन दिस फिरोजाबाद, देयर आर टू वर्ल्ड्स। क्या है? एक दुनिया तो है, एक दुनिया है बैंगल मेकर्स की, और जो बैंगल मेकर्स जो हैं दे आर क्रास्ट, ओके, दे आर क्रास्ट, डोमिनेटेड, ओके, इल ट्रीटेड,
ओके और फिर जो है ह्यूमिलिएटेड, they are crushed, dominated, ill-treated, humiliated, and they suffer from what? They suffer from the stigma of STIGMA, stigma of caste, and इन लोगों का कास्ट है बैंगल मेकर्स, BM. ओके ये इन लोगों की वर्ल्ड है, बैंगल मेकर्स की वर्ल्ड है. और एक वर्ल्ड है जहां पे दैट मींस और एक लोगों की दुनिया है जिसका नाम है दैट मींस विशियस सर्कल, विशियस VICIOUS, विशियस सर्कल CIRCLE. विशियस मीन्स हार्मफुल. तो दैट मींस देयर इज ए ग्रुप ऑफ हार्मफुल पर्संस. वो लोग कौन है? शाहूकर्स हैं, शाहूकर हैं, मिडिलमैन हैं. और कौन है? ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस हैं, लॉ कीपर हैं, लॉ कीपर दैट मींस एडवोकेट, लॉयर्स लोग हैं. और फिर MP लोग हैं, MLA लोग हैं. तो सब लोग मिली भगत हैं. ये सब लोग मिल करके, मिडिलमैन हैं, ये सब लोग मिलके इन लोगों से काम लेते हैं. इन लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करते हैं, ये ऑपरेस करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्रूएलिटी शो करते हैं. इन लोगों का पूरा वेतन नहीं देते, इन लोगों का पूरा पैसा नहीं देते हैं. और ये लोग अगर आवाज उठाते हैं तो जेल में ले जाके बंद कर देते हैं. तो ये लोग यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये लोग जो है किसकी तरह हैं? पैरासाइट की तरह जिंदगी जीते हैं. तो राइटर इज टेलिंग, एक तो विशियस सर्कल है और एक ये लोग हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये सारे जो है जो मार्किंग आउट करके मैंने दिया होता है एडमिशन, हाँ ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है. लास्ट में मुकेश को राइटर पूछ रही हैं कि अब तुम क्या करना चाहते हो? तो मुकेश कहता है कि नहीं मैडम, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक. मैं बैंगल मेकिंग कतई ही नहीं करूँगा. और मैं मोटर मैकेनिक बनने के लिए क्या है, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए. कहाँ जाने के लिए? हम ऑलरेडी गैरेज जा रहे हैं काम करने के लिए. ठीक है. और गैरेज जाना शुरू कर दिए. अनिस जंग एक ट्रिक फेंकी है. अच्छा क्यों तुम पायलट क्यों नहीं बनना चाहते हो? क्यों मैकेनिक ही बनना चाहते हो? पायलट भी तो बहुत अच्छा जॉब है, अच्छा उसमें इनकम है. तो मुकेश जी सोचा है कि यार फिर जमीन की तरफ ताके कि ये फिरोजाबाद के आसमान में पायलट दैट मींस एयरप्लेन बहुत कम है. तो कम है तो वहाँ पे कंपटीशन हाई होगा. उन्होंने सोचा है कि हाई कंपटीशन में हम रह नहीं पाएंगे, पायलट हम बन नहीं पाएंगे. और पायलट हम बनने भी कोशिश करेंगे तो फिर हमारे फैमिली से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा. और हमें जब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम खुद पे मेरे पास जो है उतना पैसा नहीं है ना हमारे पास. उससे बेहतर है कि व्हाट आई एम थिंकिंग टू बिकम मोटर मैकेनिक ही बनूंगा एक दिन. मैं जितना अर्न करूंगा उसी पे आई विल बी डिपेंडेंट. मैं जितना कमाऊंगा उसी पे मैं कुछ सोच सकता हूँ, उसी पे मैं ड्रीम कर सकता हूँ, ऊपर फ्लाई करने के लिए नहीं. तो राइटर यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस देखा किसका? अनिस जंग का. क्योंकि राइटर यहाँ पे और एक बात कहे हैं कि दैट मींस यहाँ पे ये बैंगल मेकर्स लोग इतने क्रश्ड हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इतना टेरिफाइड हैं कि और लेबर करते करते हैं दैट मींस ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल. एक लाइन और एक्सप्लेन कर दे रहा आपको. हाँ एक जगह पे है ईयर्स ऑफ माइंड NUM mind numbing toil. Years of mind numbing toil has killed their initiative to start. Okay, initiative to start. यानी कि यहाँ पे माइंड नंबिंग किसे कहते हैं? नंबिंग का मतलब होता है दैट मींस इनसेंसिटिव बना देना. इनसेंसिटिव का मतलब होता है इनएक्टिव बना देना. दैट मीन्स ये लोग जो टॉयल करते हैं, टॉयल का मतलब होता है हार्ड लेबर, हार्ड लेबर. ये लोग सुबह से शाम तक, गार्जियन एज वेल एज चिल्ड्रेन, बैंगल मेकिंग में इतने सुबह से शाम तक ये लोग डेली का डेली इतना काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं. हार्ड वर्क करते करते इन लोगों का जो है बेटा क्या होता है, ब्रेन जो है इनएक्टिव हो गया, इनसेंसिटिव हो गया. अरे ब्रेन में डेयरिंग पावर है ही नहीं, करेज है ही नहीं, ब्रेव है ही नहीं. क्योंकि ये छोड़ के कोई दूसरा काम करने के लिए क्या चाहिए? जिगरा चाहिए ना, बोल्डनेस चाहिए ना, कॉन्फिडेंस चाहिए ना. तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? दिन भर थके हुए रहते हैं. जब काम करते करते फिजिकली इतना ज़्यादा वर्कलोड है
कि इसका बेटा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। जब कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो अब क्या सोचेगा वो बंदा, अरे जो है वो दे दो, जो काम है चलो अब हमारे पास कुछ नहीं है। या तो फिर सो जाएगा, या तो फिर जो है कहेगा कि अब कितना करे, करते करते सहते सहते जो है अब क्या हो गया, जो इनिशिएट करने का जो एक इंटेंशन होता है, एक इच्छा होता है, विल पावर होता है, वो विल पावर ही क्या हो गया, लॉस हो गया। किसमें लॉस हो गया, ये बैंगल मेकर्स में। हाँ, तो ये आपका स्टोरी है। राइटर कह रहे हैं कि इन लोगों का इतना वर्क है, और ये वर्क करते करते सुबह से शाम तक और ईयर्स आफ्टर ईयर्स करते करते कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस वे आपका जो है राइटर ने यहाँ पे बहुत बाखूबी समझाए हैं कि ये चिल्ड्रेन की लाइफ में कितनी ट्रबल्स है, और ये चिल्ड्रेन की लाइफ में इन लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज है, इन लोगों की ड्रीम है स्कूलिंग। यहाँ पे तो कोई स्कूल जाता ही नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चों को आप खेलते हुए देखे ही नहीं हो, आप यहाँ पे कोई बच्चों को जो है फ्री सोचते हुए आप देखे ही नहीं हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ओनली दैट इन डिप्लोरेबल कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन, ओनली नथिंगनेस। अरे और एक बात तो हम कहना भूल ही गए हैं, दैट मीन्स राइटर जब तक वहाँ पे थे तो फिर जो है दैट मीन्स हर घर से देयर इज ए क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी। ऑलमोस्ट हर घर से जो है एक आवाज आ रही थी, एंड नॉट इनफ टू ईट। बेटा हम तो खुद देखे नहीं है कि हाँ आज भी किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एरिया में खाने की इतना दुर्गति है, पैसे की इतना किल्लत है। आई एम सॉरी टू से दिस लाइक दिस। तो ये आपका स्टोरी क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है। तो यहाँ पे मैन मेड, हाँ किन लोगों की लाइफ में, फिरोजाबाद की लाइफ में बेटा मैन मेड प्रॉब्लम है। एक इंसान दूसरे इंसान की प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। और बेटा वहाँ पे सीमापुरी में चलते हैं अगर, तो सीमापुरी में जो है वो प्रॉब्लम कुछ हद तक तो नेचर प्रॉब्लम है, और कुछ हद तक तो सरकार का प्रॉब्लम है। सरकार वहाँ पे क्या है, रिजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर करके रखा है। ठीक है, टॉर्चर किया नहीं लेकिन इग्नोर करके रखा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिरोजाबाद में ये लोग डायरेक्ट इल ट्रीट कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रास्ट करके रखा है, डायरेक्ट टेरिफाई करके रखा है, डायरेक्ट जो है इसको निचोड़ करके पैसा कमा रहे हैं। इन लोगों की इनकम से ये लोग मस्ती से लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पे यही सारे क्वेश्चन है। आई होप दैट वी इसका जो क्वेश्चन, यही एक्सप्लेनेशन से सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप इट्स सो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, क्यों ये लोग दूसरा काम करने के लिए इन लोग बस सोचते क्यों नहीं है। बाबू कैसे सोचेगा, कैसे सोचेगा, फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ अब है ही नहीं। अरे जब फिजिकल स्ट्रेंथ, पेट में फ्यूल भी तो चाहिए ना, हमारा स्टेमिना रखने के लिए क्या चाहिए, फूड भी चाहिए। तो वहाँ पे तो क्राई ऑफ नो, नॉट हैविंग इनफ फूड। अरे जब इतना अमाउंट उनको लो अमाउंट देंगे तो फिर इतना ज़्यादा कहाँ न्यूट्रियस फूड कहाँ से आएगा। जब न्यूट्रियस फूड नहीं आएगा तो एनर्जी लेवल कहाँ रहेगा, जब एनर्जी लेवल नहीं रहेगा तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। तो यानी कि यू कैन से दैट दीज आर द विशियस सर्कल। राइटर ने इनको बहुत अच्छे से बताए हैं कि दैट दे आर द विशियस सर्कल, हार्मफुल पीपल। ये लोग दूसरों की भला के लिए नहीं सोच सकते हैं, ये लोग दूसरों की जिंदगी से ये लोग जीते हैं, दूसरों की हैप्पीनेस को मार करके ये लोग जीता है। ये सोसाइटी का पैरासाइट्स हैं। आइए यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं जो पाइवोटल कैरेक्टर, यू में से दैट वेरी वो कैरेक्टर है, क्या है, लीडिंग कैरेक्टर है। एक है मुकेश है और एक है साहिब आलम। बट मुकेश, यहाँ पे देखें, मुकेश की जिंदगी में इतनी सारे टॉर्चर है, इतनी सारे अत्याचार है, फिर भी मुकेश थोड़ा सा उनमें से हट करके अलग चलना शुरू कर दिया। वो उनका एक जिद है कि हम बैंगल मेक नहीं करेंगे, ना हम किसी की मानी से हम जीना चाहते हैं, किसी की ली हुई पैसे से नहीं करेंगे, हम करेंगे तो अपना। तो ये एक अलग अंदाज है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। और उधर साहिब आलम क्या है, साहिब आलम को फ्लैट कैरेक्टर कहा जा सकता है। दैट मीन्स जो सिचुएशन है, सिचुएशन से ही वो रहना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और मुकेश वो सिचुएशन बनाना चाहते हैं, वो चांस बनाना चाहता है, वो स्कोप बनाना चाहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं रहना चाहते हैं, वो खुद का मास्टर बन के जीना चाहते हैं। तो वो उनसे हम राउंड कैरेक्टर कहेंगे। राउंड कैरेक्टर इन द सेंस पॉजिटिव सोच रखने वाला, डेयरिंग पावर रखने वाला, करेजियस पर्सन, और क्या है, इनिशिएट करता है, स्कोप क्रिएट करता है, फैसिलिटी वो ढूंढ के लाता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाने वाला कैरेक्टर है, वो है मुकेश। और यहाँ पे साहिब आलम क्या है, जस्ट फ्लैट कैरेक्टर है, नो हीलिंग, नो डूलिंग, नो मूवमेंट। जैसा हमारे सिचुएशन है वैसे ही जीते रहो, ना एक कदम आगे ना एक कदम, हिम्मत ही नहीं है। जो सिचुएशन है उसी से चलो, ज़्यादा डेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी ऐसी तरह कट जाएगा। मुकेश सोचता है कि नहीं,
या तो करेंगे या मर जाएंगे, मरना तो ऐसे भी है। तो वो राउंड कैरेक्टर है और ये फ्लैट कैरेक्टर है। एनीवे, आई होप इतना इनफ है। फिर भी क्वेश्चन आंसर करिएगा, और क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ डिफिकल्टीज होगा तो मैं हूं ना। थैंक यू, थैंक यू।